حصہ سیکھا تھا کیا؟ مسیح کی بشریت. تو آج ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ مسیح کی الوہیت. مسیح کی کیا ہے جی؟ الوہیت. مسیح کی کیا ہے جی؟ الوہیت. کیا جی؟ سبھی بولیں گے. کس کی؟ مسیح کی. کیا سیکھنے لگے ہیں جی؟ الوہیت. مسیح کی کیا جی؟ الوہیت. لفظ یاد رکھیں گے الوہیت. لفظ کیا یاد رکھیں گے جی؟ الوہیت. تو پہلے بشریت کو جاننے کے لیے ہمیں عقیدے کا سہارا لینا پڑتا ہے. الوہیت کو جاننے کے لیے بھی ہمیں کس کا سہارا لینا پڑتا ہے جی؟ عقیدے کا. تو میں نے عقیدے کے 4 پوائنٹ آپ کے سامنے لکھے ہیں. کتنے جی؟ 4 پوائنٹ. ان میں سے پہلا پوائنٹ جو ہے 6 نمبر پر، یہ اثناسیس کے عقیدے میں سے 6 نمبر جو ہے، کہاں سے کہہ رہا ہوں جی؟ اثناسیس کے عقیدے میں سے 6 پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے جی. ذرا پڑھیے، آپ پڑھیں گے. لیکن باپ اور بیٹے اور روح القدس کی الوہیت رکھی ہے، جلال برابر عظمت یکساں ہے. جی باپ کی کیا ہے جی؟ الوہیت ایک ہی ہے. باپ کی الوہیت ایک ہی ہے. بیٹے کی الوہیت ایک ہی ہے. روح القدس کی الوہیت ایک ہی ہے. جلال برابر عظمت برابر. جلال بھی برابر، عظمت بھی برابر، پاکیزگی بھی برابر. کیا ہے جی؟ جلال بھی برابر اور عظمت بھی. نہیں ایسے نہیں. اکنوم کون ہے؟ ازلی شخص. اگر اکنوم ازلی شخص میں کوئی کہے مخلوق تو پھر وہ کیا ہے جی؟ بدعت. یہ جتنی بھی بڑی کلیسیاں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے جو لاہی شخص اکنوم میں، کیونکہ ذات کام نہیں کرتی. ذات کام نہیں کرتی. ذات کا جو مالک ہے ازلی شخص وہ کام کرتا ہے. تو یسوع مسیح باپ کا دوسرا اکنوم ہے. تو اس کی الوہیت کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں، کیونکہ باپ کی الوہیت، روح القدس کی الوہیت اور بیٹے کی الوہیت کیا ہے جی؟ ایک. جی میں چاہتا ہوں حوالہ ذرا پڑھیے. آئیے میرے ساتھ نکالیے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا باب نمبر 1 اور آیت نمبر 20. رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا باب نمبر 1 آیت نمبر 20. جی آیت نمبر 20. کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں، اس کی اندیکھی صفتیں، الوہیت میں تمام اندیکھی صفتیں ہیں. تو میں کہتا ہوں تمام حکمت کے خزانے، تمام اندیکھی چیزوں کے خزانے مسیح میں پوشیدہ ہیں. کس میں پوشیدہ ہے جی؟ مسیح میں. حکمت کے تمام خزانے مسیح میں کیا ہے جی؟ پوشیدہ. تو باپ جس پر چاہے اس پر وہ ظاہر کر دے. بیٹا جس پر چاہے اس پر ظاہر کر دے. تو بیٹے کی جو الوہیت ہے، اچھا بیٹے کی الوہیت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بیٹا کا مطلب ہوتا ہے، بیٹے کا مطلب یہ نہیں، صرف یہ نہیں جی اس کے ساتھ یہ رشتہ ہے. بیٹے سے مراد ہم جو لیتے ہیں مسیحی دین، تثلیث کے عقیدے میں، اثناسیس کے عقیدے میں جو ہمارا مسیحی دین کا عقیدہ ہے، ورنہ ہمارا عقیدہ ہی مکمل نہیں ہوتا، ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہوتا اگر ہم بیٹے کو خدا نہ کہے. اگر کوئی بیٹے کو
तो वो क्या है? बिद्दत तत् है बेटा अकनूमियत के अतबार अतबार से, बेटा अलोहियत के अतबार से, और पशीदा है तमाम अनदेखी सिफतें। रसूल क्या कह रहा है? तमाम अनदेखी सी क्योंकि ये रसूलों की तालीम है, मसीह की अलोहियत पर सुनाया जाए। कहते हैं कि अलूहियत क्या है जी? तमाम सफात, सब चीजों से पहले है जी। आगे, यानी उसकी अजली कुदरत, उसकी अजली कुदरत, उसकी अजली कुदरत और भाई अलोहियत में हर चीज अजली है। अगर कुदरत को देखोगे तो अजली है, अगर पकीजगी को देखोगे तो अजली है। क्योंकि अलोहियत में क्या है जी? अजली, क्योंकि अलोहियत ही अजली है। समझ आइए अलोहियत क्या है? अजली है, क्योंकि खुदा अजली, बेटा अजली और अकनूम अजली। जब बेटा अकनूम अजली, इसलिए तो हम लाही शख्स कहते हैं, अजली शख्स कहते हैं, अजल से है। जब कुछ भी नहीं था तो बेटा था, क्योंकि उसकी अलोहियत मौजूद थी जी। आगे, और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से दुनिया की पैदाइश के वक्त से, दुनिया की पैदाइश तो पहले भी अलोहियत मौजूद थी जी। बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है जी अलोहियत कैंज नजर आती है जी? जो बनाई हुई चीज बनाई हुई चीज़ां बनिया तो फिर अलोहियत नजर आई। अलोहियत चीज़ां नूं बनाउंदी है ते अलोहियत दा मतलब है जात, ते जात ते काम नहीं करदी। जात दा जिहड़ा मालिक, जात दा मालिक कौन है? जात असली शख्स ते अजली शख्स कौन है? बेटा बेटा अजली शख्स है, बेटा खुदा है जेड़ा ओ उस अकनूम दे। बेटा की है जी? नहीं इंज नहीं कहना, पहले कहना अकनूम। की कहना जी? अकनूम। अकनूम का मतलब की है जी? असली शख्स अजली शख्स। तो अलोहियत क्या है? जात अलोहियत क्या है? हाँ वेरी गुड, किसने कहा? ओ वेरी गुड। अलोहियत को क्या कहेंगे? रूह। तो रूह क्या है? जात। तो जात क्या है? तमाम सफात का मजमुआ, तमाम अनदेखी सफात जो है वो अलोहियत है। मैं और शान करने लगा हूं आपके लिए, तमाम खुदाई अलोहियत है। तमाम खुदाई क्या है जी? अलोहियत। अब देख सकते हो, गिन सकते हो, जान सकते हो तो जान लो। इसलिए लिखा है वाहिद खुदा को जानो, मसीह को जानो और रुल कुद्दस को, क्योंकि तीनों की अलोहियत एक ही है। बाप की अलोहियत एक, बेटे की अलोहियत भी एक ही है, एक जैसी है। बाप की भी अलोहियत वही है, बेटे की भी अलोहियत वही है, और रुल कुद्दस की भी अलोहियत वही है। इनकी अलोहियत एक है। इसलिए हम तीन खुदा नहीं कहते, हम एक खुदा कहते हैं अलोहियत के सबब से। वजह क्या है? अलोहियत जिस वजह से हम एक कहते हैं, तीन खुदाओं का हमारा अकीदा नहीं। जी पढ़िए जी, पूरी करिए। यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। जी आमीन। आई समझ? मसीह की अलोहियत सब चीजों से पहले है। अब लफ्ज जी अलोहियत के लिए रोमियो निकालिए पहला बाब। रोमियो उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत। अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से आज पैदा हुआ। किसके एतबार से जी? जिस्म के एतबार से। किसके एतबार से जी? जिस्म के एतबार से। किस एतबार से जी? जिस्म के एतबार से। एतबार क्या है जी? जिस्म। जिस्म के एतबार से किसका बेटा ठहरा? दाऊद का। इसका मतलब बशरियत के एतबार से वो इंसान ठहरा।
फर्क करना है हमने, कौन सा हवाला किसके लिए है। अब यहाँ रसूल ने ये मुनादी करते हुए फिर कहा पाकीज़गी के एतबार से। हाँ जी, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से, अब किसके एतबार से जी, पाकीज़गी की रूह, पाकीज़गी के रूह की एतबार से, पाकीज़गी के रूह के एतबार से वो खुदा का बेटा ठहरा, रूह के एतबार से वो खुदा का बेटा ठहरा, अलोहियत के एतबार से वो, खुदा का बेटा है, अलोहियत के एतबार से क्या ठहरा जी, खुदा, खुदा का बेटा। अलोहियत के एतबार से खुदा, बेटा क्या है, खुदा, अलोहियत क्या है, रूह। इसलिए मसीही दीन में और यहूदी दीन में क्या कहा जाता है, जो रूह है वो जात है। तो जात, अलोहियत, जात, तो खूबियों का, तमाम लाही खूबियों का मजमूआ। अब सुनिए, इंसान की खूबियां फर्क है। अब देखो, इंसान देखता है, इसके लिए एक मादा आंख है। खुदा देखता है, उसकी आंखें मादा नहीं। खुदा सुनता है और इंसान भी सुनता है। इंसान के मादा कान है और खुदा के अनदेखे कान है। उस इंसान का हाथ है, उसे छूता है, खुदा भी छूता है। खुदा का अनदेखा हाथ और उसकी सिर्फ अनदेखी, हम इंसान जो है, बशरियत जो है, इंसान जब मौजूद होगी तो वो सुनेगी। तो खुदा एक वक्त में हर जगह पर सुन सकता है। ये अलोहियत की खूबी है। प्रेम, इंसान जहां मौजूद होगा वहां देखेगा, बशरियत में जहां होगा वहां देखेगा, और अलोहियत में हर जगह पर। और उसकी आंखें जो अनदेखी है, जो मादा नहीं, गैर मादा है, वो हर जगह पर हमें देखती है। ये है जी अलोहियत। अलोहियत में देखा भी जाता है, और अलोहियत में सूरत भी है। जरा हवाला निकालिए यीशु मसीह की बाबत। हाँ जी, मैं चाहता हूँ जरा हवाला ना साथ पढ़ लीजिए, एक लाइन हम दूसरी लाइन भी पढ़ ले। हाँ जी, 35 वाली। एक ही है, इस तौर पर नहीं कि अलूहियत को जिस्मानियत से बदल डाला। एक ही है, इस तौर पर नहीं इस तौर पर नहीं। कि अलूहियत को जिस्मानियत से बदल अलोहियत को क्या किया जी, जिस्मानियत से बदल डाला। भाई जिस्मानियत से अलोहियत बदली नहीं जाती, और बशरियत को मसीह अलोहियत में ले गया, ना के अलोहियत बदली, बशरियत को अलोहियत में ले गया। इस तौर की तरह नहीं, एक ही है। इसलिए मैं वो भी हवाला पढ़ूंगा एक के लिए। मैं चाहता हूँ जरा आप पढ़िए जरा सूरत के लिए। कुलसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत। खबरदार, कोई शख्स तुमको उस फिलोसफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना करे जी फलसफियां दे नाल नहीं जी, नहीं कोई फरेब ना दे दे। बड़े दुनिया दे फलसफे कह देते, मसीह ते शख्सियत ही ऐसी, जात ही ऐसी है। बड़ी दुनिया दे फलसफे कह देते मसीह ते। देख रसूल वाज़ह कह रहा, खबरदार कोई तुम्हें फरेब ना दे दे। ऐसा फलसफा जी लोगों को कहते जी बेटा खुदा ही नहीं, ते रसूल कहते खबरदार कोई तुम्हें धोखा या फरेब ना दे दे। कोई आकर कहे जी मसीह खुदा नहीं, अलोहियत दे एतबार तो ते समझो क्या नुखी दे रहा जी, धोखा ते फरेब। कलीसिया को क्या कर रहा है जी, खबरदार फलसफे दे विच मसीह नूं गलत बयान ना कर जाए। अच्छा, फलसफे दे विच ही
बशरीयत का इनकार भी कर जाते हैं। और सुने, जो मसीह में से बशरीयत का इनकार करता है वो भी बिदअत है, वो भी बिदअत है। हमने हवाला पढ़ा ना, वो जिस्म के एतबार से बशरीयत हो गई, दाऊद की नस्ल। अगर इस आयत का अगर कोई कहे जी मसीह में बशरीयत नहीं है, तो फिर तो हमें मानना पड़ेगा ये बाइबल हमें कहेगी तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि बाइबल तो कहती है मसीह में बशरीयत भी है और अलूहियत भी। अब हमने मुवाजना करना है, कहाँ मसीह में अलूहियत को देखना है और कहाँ बशरीयत को देखना है। जब हम कहते हैं अकनूम में जो अजली है, कलमा है, उसमें कोई बशरीयत ना गिने। अगर उसमें कोई बशरीयत गिनता है तो वो क्या है? बिदअत। मेरी बात की समझ आ गई है? हम किस में बशरीयत नहीं गिननी? अजली शख्स। ते अजली शख्स कौन है? कलमा। अजली शख्स कौन है? अलूहियत। अजली शख्स कौन है? जेड़ा उस ज़ात दा मालिक, बेटा यस्सु मसीह। मुश्किल तो नहीं लग रही? मेरे दिल च क्यों लग रहा है? तुहानू मुश्किल लग रही? हाँ जी, किसी ने मुश्किल तो नहीं लग रही? अच्छा हुण तुसीं मैनूं दसना है बोल के बई असीं किहदे च बशरीयत रूह नूं नहीं मनना? बशरीयत रूह नूं अलूहियत में, लाही शख्स में। अलूहियत भी कहता, लाही शख्स भी कह सकते हो, कलमा भी कह सकते हो। जड़ी तुसी वीडियो दे भाई लोगों को समझ है जी, पढ़िए जी। जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुवाफिक है, ना कि मसीह के मुवाफिक, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मसीह अलूहियत की जरा याद करिए आयत, अलूहियत की सारी मामूरी, थोड़ी जी एक तो मुकम्मल क्या कहती है बाइबल? सारी किस चीज की? अलूहियत की सारी मामूरी किसमें सकूनत करती है? मसीह में। तो मसीह किसमें है? ते अलूहियत किसमें है? हुणे पहचानिए ते ताई फिर सानू बाज होना। सारी अलूहियत सकूनत करती है जी। आगे उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है, और तुम उसमें मामूर होगे हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। आमीन। आगे भी सूरत भी ठीक है जी, ठीक है जी। आजा जरा प्रेम भाई, आई समझ? मसीह में सारी सकूनत क्या करती है जी? अलूहियत जी। पहले एक वाला पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील निकाले। बाप और बेटा क्या है जी? अब आपने, मैंने आप पर सवाल करना तो आपने जवाब देना है जी। निकालिए यूहन्ना की अंजील। यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत। मैं और बाप एक हैं। जी बताइए कैसे बाप और एक? पहले हवाला कर देते हैं। चलो हवाला कर लो, हवाला बोलो जी। यूहन्ना दी अंजील 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत। जी। मैं और बाप एक हैं। मैं और बाप एक हैं। मैं और बाप एक हैं। मैं और बाप एक है। हुण पहले भैणा दसणियां कि इंज एक वा किसके एतबार से? ढिल्ला जा कहण डे। किस एतबार से जी? अलूहियत के एतबार से क्या है? एक है। अलूहियत के एतबार से एक है। अकीदे में एक और भी है, बाप मुझसे बड़ा है। आप बताओ किसके एतबार से यीशु कहता है? बशरीयत के एतबार। यीशु कहता बाप मुझसे, तो दुनिया में कहती है जी बाप बड़ा हुंदा जी। अब बताओ यीशु किस में कहता है बाप मुझ में बड़ा है? यहाँ कह रहा है मैं एक। किस में जी? बशरीयत में। देखा जी एक है जी। अब एक कैसे हुआ? अलूहियत के एतबार से, क्योंकि यूहन्ना अलूहियत की मुनादी करता कह रहा है बाप और बेटा एक ही है। बेटे ने क्या किया? जो अन देखा था उसकी सूरत भी दिखा दी जी। पढ़िए, देखिए जरा सूरत। अलूहियत में सूरत अन देखी है जी।
फरीपियों उसका दूसरा बाब और उसकी छठी आयत से। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। किसकी सूरत पर था जी? खुदा की अब सूरत खुदा की सूरत कौन सी लेंगे? देखिए अनदेखी। क्या बात है। यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना गवाही देता, पानी का बपतिस्मा देता ना यूहन्ना, उसने क्या गवाही दी थी? उसने यीशु को आते देखा। क्या किया जी? आते देखा। यीशु को आते देखा तो कहता है बेटा है। कहाँ कहोगे? है। नहीं समझे? नहीं ना समझे? खुदा का बेटा है। अज़ल से है। बशरियत में है। फैसला करो, अलोहियत कहाँ या बशरियत कहाँ? बशरियत में है। हाँ, खुदा का बेटा है। कहाँ? बशरियत में। वो कहलाएगा कौन के? दे जवाब। सुनते भी कोल बैठा है ते है अलोहियत में। अजल से कह दो। कामरान भाई ने ठीक कहा, अजल से कह दो। जो है वो अजल से है, जो है वो अलोहियत में है। इसलिए हम उसे खुदा कहते हैं क्योंकि अलोहियत में वो है। वो खुदा की सूरत पर था। केड़ी सूरत? जड़ी अनदेखी सी। ते अनदेखी सूरत केड़ी है? अलोहियत। किसी ने नहीं देखी ते वो सूरत कोई देख भी नहीं सकता। देखने वाला मर जाता। मूसा ने क्या है डिमांड की थी? बड़ा टॉप दा बंदा, बड़ा टॉप दा खादम सी, बड़ा जबरदस्त नबी सी। उन्हें क्या? अपना जलाल मैनू दिखा दे। कहता तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। जलाल दी भी थोड़ी थोड़ी समझ आउन डई है कि नहीं? तो फिर कही की समझ आई है? खुदावन तेनू जलाल देने, खुदावन तेनू जलाल देने, खुदावन तेनू जलाल देने। क्योंकि बेटे का, बाप का और रूह कुद्दस का जलाल एक है। अब बदरूमा तुहानू वेख के चीकां क्यों मार दियां? ते तुहानू नजर ही नहीं आउंदा। बदरूआ नू जलाल ते अर्जुन नजर वेख के थरथराउंदियां कंबदियां। वो जड़ियां बदरूआ ना पहले फरिश्ते हुंदे सी, पहले वो फरिश्ते सी जो पाक खुदा दी हजूरी च सी। जो गुनाह आसमाना ते नहीं सी कीता ते उदों पेश तेरे तो ओ जलाल जेड़ा अजल तो जलाल सी, ओ जलाल वेखदियां ते वेख के कंबदियां। ओ ही जलाल इत्थे साडी गल नहीं बनदी। ते जे असीं बदरूआं नूं वेख के डरदे रहिए फिर कौन नहीं यकीन कीता यीशु ने जिहड़ी गल कही, ऐ बाप तेरा और मेरा जलाल एक है और जलाल जो तूने मुझे दिया वही जलाल मैंने इन्हें दिया। अब तरीकी को कहो मेरे पास जलाल है, तरीकी भाग जाएगी, गुनाह भाग जाएगा, लापरवाही भाग जाएगी, नफरत भाग जाएगी, ते लड़ाई झगड़े भी कहना पड़ेगा। की कहना पड़ेगा जी? मुझ में वही जलाल है। मुझ में वही जलाल है। किसके सबब से? मसीह यीशु के सबब से। किसके सबब से? बेटे के सबब से। क्योंकि मैंने बेटे को कबूल किया है, बेटा खुदा है। मैंने कबूल किया है, बेटा खुदा है। जी अनदेखी खुदा की सूरत। जी आगे पढ़िए जी, आगे जी। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। वाह, खुदा की सूरत पर था, अलोहियत थी जो बशरियत से आया है, ते फिर उन्हें उस चीज ਨੂੰ अपने कब्जे से ना रखा। भाई ਇਹਦਾ ਇਹ नहीं मतलब वो तो अलोहियत खत्म हो गई है। नहीं, उन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया, जुम कर लिया किसी चीज़ ਨੂੰ। किसी चीज़ 'ਚ ਤੁਸੀਂ जुम कर ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ जुम कर लिया ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ जुम ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਪਹਿਨੀ, ਤੇ ਅਲੋਹੀਅਤ ਨੂੰ जानना भी जरूरी है जी। हाँ जी, पढ़ लिया जी पूरी। एक कुर्सियों का खत है, कुर्सियों का नाम। पहले मैं चाहता हूँ ये 2 लाइनें पढ़ते हैं जी। जी पढ़िए जी। अलूहियत की राह से बाप के बराबर, अलूहियत की राह से बाप के क्या है जी? बराबर जी। इंसानियत की राह से बाप से कम कर, इंसानियत की राह से बाप से कम कर। एदा मतलब इंसानियत की राह से क्या लेंगे? बशरियत। जब बशर बना तो फिर तो बशर तो खुदा से कम ही है। लोहियत ज़ात फर्क जानांगे ते बशरियत ज़ात फर्क जानांगे। जो असी फर्क करांगे तो फिर उलझन नहीं बनेगी, वरना सवाल बन जाएगा वही जे वो बशरियत खुदा है तो फिर मसलीब ते मसलूब कौन होया? खुदा मसलूब होया? नहीं, बशर मसलूब होया जी। बाप से क्या है जी? बशर एतबार तो कमतर। बशरियत के एतबार तो की है जी? कमतर। तीसरी थलड़ी भी पढ़ो जी। जी वो खुदा है, बाप वो खुदा कैसे खुदा है? बाप के जहर से खुदा है। ये पहली सदी से चौथी सदी में राइज हुआ था, आज तक ये राइज है कलीसिया में। भाई बाप के जौहर से वो क्या है? खुदा। बाप के जौहर, बाप का जौहर क्या है? कलमा। बाप का जौहर क्या है? अलोहियत। बाप के जौहर से वो खुदा है जी। आगे भी सब आलमों से पेशतर मलूद। मलूद का मतलब मौजूद नहीं होता, मलूद का मतलब होता है मौजूद नहीं लेना। कैथलिक ने मौजूद लिखा है, वे मौजूद है। मैं चाहता हूँ हवाला पढ़कर फिर बात करते हैं इस पर। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। मलूद है। मलूद तो मुराद लेंगे अजली। तम सब आलमों से पहले। आलम कहते हैं जैसे ये मिट्टी का आलम, रूहों का आलम और आलम, खला के आलम, बहुत सारे आलम हैं। इन सब आलमों से पहले वो अनदेखे खुदा की सूरत पर था। तो अनदेखे खुदा की सूरत क्या है? अलोहियत। तो मसीह अलोहियत भी रखता है और बशरियत भी। तो जब हम बशरियत में देखेंगे तो फिर क्या देखेंगे? इंसान। और जब हम देखेंगे अलोहियत में तो फिर क्या देखेंगे? खुदा। तो बेटा, जब खुदा कहना है फिर बेटा कहना है, जब मसीह या यीशु कहना है तो वो बशरियत में। क्योंकि जब वो बशर बना, मुजस्सम हुआ, तो फिर उसका नाम, फरिश्ते ने कहा इसका नाम तू यीशु रखना, तो इसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम जो है मुजस्सम से शुरू किया जाता है, तो मसीह मसा से शुरू किया जाता। जब उसे मसा किया गया, ममसू तो बहुत है, मसीह एक ही है। ममसू तो बहुत है और मसीह एक ही है। ठीक है। अब यीशु ने जब मुनादी की तो आप मुझे ये बताएं, अलोहियत में मुनादी की है या बशरियत में? बशरियत में। इसकी वजह शाबाश, आपने अच्छा सबने जवाब दिया। वे मुनादी कहाँ की जी? बशरियत में। क्योंकि खुदा की मुनादी की जाती है, खुदा मुनादी करता नहीं। मुनादी कहते हैं जैसे मैं आपके घरों में आया, कभी किसी शहर में गया, कभी कहाँ गया, कभी कहाँ गया, गांव गया, शहर शहर गए, एक एक बंदे के पास जाना, तो खुदा हुक्म जारी करता है। तो जब वो हुक्म जारी करता है तो हम उसकी फरमाबरदारी करते हैं, हम उसकी ताबेदारी करते हैं, उसके हुक्म को मानते हैं। जब मानते हैं तो फिर हम उसकी मुनादी करते हैं। भाई ये खुदा का हुक्म है,
किसका हुक्म है जी? खुदा का। जैसे हफ्ते के पहले दिन इबादत करना, ये भी खुदा का हुक्म है। फिर लिखा काहिन हर रोज खुदा के हजूर खड़ा होता है, ये किसका हुक्म है? खुदा का। इबादत करना खुदा का हुक्म, मसीह को जानना खुदा का हुक्म, खुदा को जानना खुदा का हुक्म, उसकी परस्तश करना किसका हुक्म है? ते टाइम ना आके करना केदा हुक्म। परस्तश जेड़ी है एक अहम हिस्सा है इबादत का। बड़े लोग अगर चाहते हैं परस्तश का टाइम बढ़ाया जाए तो फिर असी पहले आ जाइए तो परस्तश पूरे टाइम ना सी करके ते पूरी परस्तश करिए, तो असी पूरी परस्तश करांगे, इबादत का हिस्सा। ठीक है जी। खुदा सानू इस कलाम दे वसीले नाल बरकत दे। मैं